ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤਾ ਹੈਗੀ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया डीएसपी के यहाँ जलंधर में। यहाँ पर क्या मामला, क्योंकि मामला तो आपका कपूरथला में चल रहा था, यहाँ पर क्या मामला हुआ? सर, जो हमने अपनी एफआईआर करवाई थी उसमें हमने पहले मेंशन करा था बजिंदर सिंह के खिलाफ जो हमने एफआईआर करवाई थी उसमें हमने मेंशन करा था कि ये इस केस को दबाने के लिए हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, झूठे पर्चे करेंगे ताकि हम गुमराह करेंगे, ताकि हम बोल ना सके, ताकि हम इनकी बातें बता ना सके। तो उन्होंने ऐसे ही करा कि अपने वहाँ के लोगों से मेरे पे झूठी कंप्लेंट करवाई थी। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने काफ़ी दिन पहले की थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं आपके ऊपर कि आप और आपकी मदर वहाँ पे कुछ लोगों से पैसे लेने देने के मामले में पकड़े गए और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई भी करने की कोशिश की थी। उन्होंने बोला कि हमने तो इनको मतलब निकाला है, तो ये जानबूझ के हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैम, इनके खुद के प्रधान की रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आप खुद छोड़ के गए थे, हम तो चाहते नहीं थे आप जाओ। इनके प्रधानों की जो भी इसके खिलाफ जो एविडेंस है वो हमने पुलिस को दे चुके हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਛਨ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ? ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਮੈਮ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 2023 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ 2023 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2021 ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਚ ਦਰਜ ਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਆਏ ਹੋ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ कंप्लेन है उन्होंने देख लिया है, हमने प्रूफ दिखा दिया था उनको और उन्होंने प्रूफ देख कर के सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि जिन्होंने कंप्लेंट डाली है इनका काम ही है कंप्लेंट डालने का। इनके ऊपर पहले से एफआईआर में नाम था कि झूठी कंप्लेंट्स ये डालती हैं और डीजीपी पंजाब के पास ये कंप्लेंट पहले से थी। तो उनको हमने जब इन्फॉर्म किया डीजीपी साहब को तो उन्होंने कहा आप वहाँ पर जाकर के अपनी पुष्टि की। हमने खुद ये एक पीड़िता है, पीड़िता का आपको पता है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनका नाम आपको पब्लिकली किसी भी यूट्यूब पर या किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। इसका नाम लिया गया है और इनका नाम लेकर के और इनकी फ़ोटो दिखा करके इन्हीं के प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के चैनल के द्वारा ये काम किया गया है।
और उसकी उन्होंने पुष्टि कर ली है, एविडेंस ले लिया है और उनको ये बात का क्लियर हो चुका है कि ये एफआईआर को दबाने की और इस केस को गुमराह करने की इनकी एक चाल है, जो कि पहले ही हमने एफआईआर जब हमने करी थी उस समय में हमने ये चीज मेंशन करा दिया था। और ये जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। जैसे आपने अभी इनसे, मेरी वाइफ से सवाल पूछा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह बोलते हैं कि मेरे पास फोन में रखता नहीं हूं और मैं नहीं रखता हूं, तो देखिए प्रशासन इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो किसी की भी फेक चैट बना करके चेक कर लेगा। प्रॉपर इनके नाम की जो सिम है, इन्होंने जो मैसेजेस किया, क्या वीडियो कॉल्स के जो स्क्रीनशॉट होते हैं क्या वो भी बनावटी होते हैं, वो सारी चीजों के प्रूफ इनके हैं। इनके प्रधान ने जो आपके चैनल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इन्होंने मुझे बुलाया, तो मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे गवाह हैं कि ये खुद आए थे और इनके फोन हिस्ट्री में दिखेगा कि फोन इन्होंने किया। और ये इतने ज्यादा अगर सीधे हैं, शरीफ हैं, तो ये किस बात को मैटर दबाने की कोशिश कर रहे थे और क्यों इतना घबराए हुए थे कि आप इस बात का उजागर ना करें, किसी भी विषय में बात ना करें। ऑलरेडी प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर रेप केस चल रहे हैं, जिसकी पेशी वो भुगतने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जिसके लिए उनके ऊपर अभी कार्रवाई प्रशासन ने खुद उल्टा करी हुई है। आप ये सब जानकारी रखें और हमारी जान को खतरा है, इसलिए हमने एप्लीकेशन लगाई, हमको प्रशासन ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है और इनके द्वारा हमारे ऊपर जान की कंडीशन इन्होंने बनाई है, हमें जान से मारने की इनकी कोशिश है। ये बहुत सारे झूठे अफवाहें और ये पर्चे हमारे नाम पे करेंगे, लेकिन हमको प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए ठीक न्याय करेगा और प्रॉपर पड़ताल करेगा। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾयਦ ਵਿਜੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ हमारा ਸੀਗਾ। विजय मैनुअल जी के ਉਹ साथ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं आपको उसके लिए बता दूं, पहली चीज, जो विजय मैनुअल जी जो हैं वो बिशप हैं, ठीक है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बिशप हैं। और जहां तक उनकी बात है तो उनको हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमारी हेल्प करें। एक क्रिश्चियन लीडर होने के नाते वो इस मामले में नहीं आए थे, ना उनकी कोई इसमें साजिश है, ना कोई लेना देना है। वो एक क्रिश्चियन के बड़े लीडर हैं। जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह है वो उन्हीं का चेला है, आप जानकारी निकालें उनकी, तो वो उन्हीं का चेला, उन्हीं का बनाया हुआ चेला है प्रॉफिट बजिंदर सिंह। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के वो आत्मिक पिता लगते हैं और उन्होंने, उनका हमारे इस केस से कोई लेना था, उन्होंने हमारे लिए एक हेल्प करी, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर एक अकेले पर्सन थे, क्योंकि इतने बड़े आदमी के खिलाफ उसकी सच को दिखाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक मुश्किल काम था और उन्होंने हमारी मदद करी है इस चीज को सामने लाने में, इसलिए उनका नाम इसमें गलत तरीके से घसीटा जा रहा है और गलत नाम लिया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ नहीं होती है कि किसी के कहने पे या भड़काने पे कि अपनी इज्जत की जैसी धज्जियां उड़ा रहे हैं, जैसी बदनाम करे कोई लड़की किसी के कारण अपने आप को ऐसे आगे करे। यहाँ पे पहुंची थी, उसने क्या मामला उसका था? 2 एफआईआर बताया जा रहा है, एक पीड़िता के खिलाफ भी है और एक पीड़िता की भी है, तो इस पूरे मामले के बारे में पीड़िता के खिलाफ एफआईआर है या नहीं है उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। मेरे को एक कंप्लेंट 25 ऑफ दिस मंथ मार्क हुई थी, तो उसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ एक दरखास्त दी थी, जिसमें कि जो आज लड़की अपना पक्ष सामने रखने आई थी अपनी मदर और अपने ब्रदर के साथ, तो आकर इन लोगों ने हमें ये बताया है कि इन लोगों का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके अंतर्गत एक एफआईआर नंबर 56 इन पीएस सिटी कपूरथला मिस्टर बलजिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें कि 3 धाराएं लगी थी, 354A, 354D ऑफ आईपीसी और 506 आईपीसी। तो अकॉर्डिंग टू द गर्ल और उसके मदर, जिनके खिलाफ ये दरखास्त हमें दी गई है, वो उनके कहने के मुताबिक कि उनका ये जो डिस्प्यूट था पहले का काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसके अंतर्गत एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो उसको काउंटर करने के लिए इन लोगों ने ये एफआईआर हमें दी है। तो हम लोगों ने इन लोगों से इनका जो भी इनके पास एविडेंस था उसको हमने पेन ड्राइव में डलवा के वी हैव टेकन इट ऑन रिकॉर्ड। तो टेक्निकली हम उसको एनालाइज करेंगे, तो जो भी एविडेंस सामने आएगा तो वील टेक द नेसेसरी स्टेप्स। सर, इसमें पीड़िता ये कह रही है कि जब वो छोटी थी, मतलब अगर हम कहें कि 17 साल की थी, तब उसके साथ ये उत्पीड़न हुआ है, उत्पीड़न का मामला है बेसिकली ये, और उत्पीड़न के इस मामले में पॉस्को एक्ट नहीं लगाया गया है। इससे इस मामले पे डीजीपी से भी उसकी मुलाकात हुई, ऐसा उसका कहना है। डीजीपी से भी मुलाकात हुई है, वहां से भी इस मामले पर कहा गया था कि इस पर रिएक्शन लिया जाए। साथ में कई ऑर्गेनाइजेशंस इस पर जो है खुद इस मामले को देख रही हैं, जैसे महिला आयोग हो गया, तमाम लोग।
तो इस मामले को लेकर के कोई अभी तक आपके पास डिटेल आया है? नहीं देखिए जी, जो लड़की अंशु और उसकी मदर आई है, उन लोगों ने इस किसी भी बात का जिक्र मेरे पास नहीं करा, क्योंकि ये चीज़ जो हुई है, अगर हुई है तो मेरी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हुई है, जिसकी जो पड़ताल करी है कपूरथला पुलिस ने करी है, और वहीं पे एफआईआर दर्ज हुई है, और वो इन्वेस्टिगेशन अब वहीं पे चल रही है। तो आई डोंट हैव एनी डिटेल्स ऑफ सच एलिगेशंस वेदर प्रूवन और नॉट, बट ये है कि मेरे पास जो कंप्लेंट आई थी उसमें ये था कि इन लोगों ने कुछ डेफेमेटरी रिमार्क्स दिए हैं फेसबुक पे कंप्लेनेंट के बारे में। तो हम लोग उसी की पड़ताल कर रहे हैं, और जो भी निकल के सामने आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एविडेंस एंड अकॉर्डिंग्स टू लॉ विल डू द नीडफुल। आखिरी सवाल है सर कि क्या इस महिला के जो पीड़ित महिला है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सिर्फ एप्लीकेशन है? नहीं, अभी तक एप्लीकेशन है, अभी तो एप्लीकेशन है। जो कंप्लेनेंट है वो अपना पक्ष रख के गए हैं। हाँ। आज ये जो है आंसरिंग साइड वो आए हैं, वो अपना पक्ष रख के जो उनके पास एविडेंस है वो पेश करेंगे, जिनको हम एनालाइज करेंगे, और उसके बाद जो बनती कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। इस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित करना, उनको तकलीफ देना, सेक्सुअली असॉल्ट करना, इन सब विषयों की कमीशन निंदा करता है। पर सिर्फ इतना ही न करते हुए हमने उस घटना का कॉग्निजेंस लिया है, और सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए हमने पंजाब पुलिस को इस विषय में, उन्होंने एफआईआर भी तो दर्ज हो गया है, इस विषय में उन्होंने क्या एक्शन ली है उसकी एटीआर हमने तुरंत पंजाब पुलिस से मांगी है।